Hello students, today I am here with you to discuss some remaining topics of our chapter which is going on, that is manufacturing industries. In this chapter there are only two topics which are remaining. After that this chapter is completed. So let us take a look on the topics. First one is control of environmental degradation, because we are in that chapter. In our last topic we were discussing about the types of pollution which are affecting our environment or degraded the environment. So today we will discuss about the control of environmental degradation. After that we will discuss about the NTPC, National Thermal Power Corporation. So these are the two topics which we will discuss today in detail. So first of all, let us start with the revision portion of our last lecture, that is related with different types of pollution. Now different types of pollution here includes 4 types of pollution generally, which are degrading our environment continuously. The first one is air pollution. Second one is water pollution. Third one is noise pollution. And fourth one is thermal pollution. So these are the 4 types of pollution which are continuously degrading our environment. And if we are not taking any steps regarding these type of pollution or to decrease the level of degradation, so that is a serious challenge which we are facing now also, and in future that challenge becomes more challenging for us. So let us take a look on the control portions of environmental degradation, that how to control this environment degradation. So these 4 environmental pollutions which create the environmental degradation is solved with the help of some steps which we were taking to control these things. And the control of environmental degradation involves there are some steps which we were taking according to this control system. If we are saying about the water pollution, so let us take an example. Every liter of wastewater discharged by our industries, it pollutes 8 times the quantity of fresh water. For example, अगर 1 लीटर या फिर 1 ग्लास वाटर पोल्यूटेड हो चुका है और उस पोल्यूटेड वाटर को हम डिस्चार्ज करते हैं इंडस्ट्रीज से, तो वो अपने से 8 टाइम्स ज़्यादा फ्रेश वाटर को पोल्यूट करता है. तो इट मीन्स इट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस. आप थोड़ा सा पानी अगर पोल्यूटेड वाटर है उसको आप डिस्चार्ज अगर कर देते हो तो वो 8 टाइम्स ज़्यादा फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर देता है. तो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर में, जिससे बहुत सारी डिजीजेस क्रिएट होंगी, जैसे डायरिया है और हेपेटाइटिस है. इस तरह की बहुत सारी डिजीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है जो रूटीन में हम कंज्यूम करते हैं. तो इस चीज़ को लेकर हम कहीं भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि इनको प्रॉपरली कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. सो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे, कुछ सजेशंस गिवन हैं कि किस तरीके से फ्रेश वाटर का जो पोल्यूशन है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं. जो इंडस्ट्रीज से पोल्यूटेड वाटर जो डिस्चार्ज होता है उससे होने वाले पोल्यूशन को हम कैसे डिक्रीज करें. सो यहाँ पे हम कुछ सजेशंस को पढ़ेंगे. ये सजेशंस हमें ये शो करते हैं कि हम किस तरीके से इस पोल्यूटेड वाटर को सेव कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सजेशन इज मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ जो भी हमारे पास फ्रेश वाटर है, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय
रीयूजिंग एंड रीसाइक्लिंग। सो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर, आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वाटर के यूज को? 2 एरियाज हमारे पास होंगे, हम उसी सेम वाटर क्वांटिटी को रीयूज करें एंड रीसाइकिल करें। सो बार बार जो वाटर आप पोल्यूट करते जाएंगे उसको हर बार न्यू पोर्शन को यूज करने की बजाय हम क्या करें, प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग करने के बाद उसी सेम वाटर को रीयूज या रीसाइकिल कर लिया जाए। तो ये रीसाइक्लिंग और रीयूजिंग का जो प्रोसेस है ये 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस तक जा सकता है। तो इससे जो वेस्टेज हो रही है वाटर की या पोल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है वो हम एक मिनिमम लेवल तक ला सकते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकेंड वन इज जो हार्वेस्टिंग होती है, इट मीन्स ये जो पॉइंट है हमारा, ये जनरली हमारे जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं उनसे रिलेट करता है। सो हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रख लेना ताकि जो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं हम उन्हें पूरा कर सकें, टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स। आप जो भी रेन वाटर है उसे हार्वेस्ट करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसका यूज इन फ्यूचर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकता है एग्रीकल्चरल एरियाज में। इसके अलावा आप इसे अपने हाउस होल्ड वर्क्स करने में, उनमें इसका यूज कर सकते हैं। सो इस वे में जो वेस्टेज है वाटर की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा ग्राउंड वाटर की बजाय आप रेन वाटर की हेल्प से अपनी नीड्स को पूरा कर पाओगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि मैक्सिमम जो वाटर है, जनरली क्या होता जा रहा है, वाटर जो है वो हमारी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट जितनी नीड इंक्रीज हो रही है उसके कंपैरेटिवली वाटर उतना रिन्यू नहीं होता। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो वाटर की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। सप्लाई किस केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं, रेन वाटर के केस में। तो इसी को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उसका बेटर यूज कर सकें। नाउ द थर्ड स्टेप इज ट्रीटिंग हॉट वाटर। जो हॉट वाटर डायरेक्टली जो हमारी रिवर्स हैं उनमें डाल दिया जाता है, उसी हॉट वाटर को पहले हम ट्रीट कर लें। सो ट्रीटिंग हॉट वाटर, उससे बेनिफिट क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है, जो पोल्यूटेड कंटेंट्स वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को हम उसमें से निकाल सकते हैं। एंड इफ्लुएंट्स, इफ्लुएंट्स मीन्स जो भी हजार्डस चीज़ें हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, उन इफ्लुएंट्स को या जो ट्रीटिंग जो हॉट वाटर है उसको ट्रीट करके, कब ट्रीट करना है हमें, बिफोर रिलीजिंग इट। उसे जब आप रिलीज करते हैं रिवर्स में या पॉन्ड्स में, उससे पहले आप उसको प्रोटेक्ट कर लें या उसे ट्रीट कर लें। तो रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा वाटर पोल्यूट होगा उस डायरेक्टली वाटर को रिलीज कर देने से, इन इफ्लुएंट्स को रिलीज कर देने से बिफोर ट्रीटिंग, उस लेवल का पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। जो एग्जांपल अभी हमने लिया हम उसे इस लेवल से डिक्रीज कर पाएंगे। सो ये जो स्टेप्स हैं इनका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि जो फ्रेश वाटर हम बहुत ज़्यादा रूटीन में पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, उस कंटेमिनेशन को, उस पोल्यूशन को हम डिक्रीज कर सकते हैं। सो इन स्टेप्स को लेने से कोई भी इंडस्ट्री को कोई लॉस नहीं हो रहा है, बट इनसे हमें एक बेनिफिट मिल रहा है कि हम वाटर पोल्यूशन डिक्रीज कर सकें। इसीलिए कुछ सजेशंस हैं जो हर एक इंडस्ट्री को यूज करने चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा रीजन है वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज करने का। इफ्लुएंट्स उसमें ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं, केमिकल्स ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक नीड अराइज होती है कि हम इन सब स्टेप्स को फॉलो करें ताकि वाटर पोल्यूशन डिक्रीज हो जाए। नाउ वाटर पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के लिए 3 फेजेस हैं जिनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं उन सभी को अगर हम ट्रीट करते हैं तो उसके लिए हम 3 फेजेस का यूज करते हैं। सो इट कैन बी डन इन 3 phases. फर्स्ट फेज यहाँ पे हमारे पास आता है जिस केस में
जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा वो मैकेनिकल मीन्स से किया जाएगा, मीन्स मशीनरीज का यूज करके हम सबसे पहला ट्रीटमेंट उनका कर सकते हैं। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल प्रोसेस। आप डिफरेंट मशीनरीज का यूज करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी आपकी, स्क्रीनिंग है, ग्राइंडिंग है, फ्लोकुलेशन है, सेडिमेंटेशन है। उसकी हेल्प से आप मैक्सिमम जो इफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ताकि जब हम उन चीज़ों को आगे ड्रेन करें तो उससे होने वाला पोल्यूशन डिक्रीज हो जाए। तो टाइमली हम इन डिफरेंट मशीन्स का यूज़ करके, मैकेनिकल प्रोसेसेस का यूज़ करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो सकता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्प से हम इन जो बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं, इनका यूज करके हम उन इफ्लुएंट्स को कम कर सकते हैं। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये भी एक स्टेप है जिसकी हेल्प से आप पॉल्यूटेड वाटर को या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के जो पार्ट्स हैं उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम उसे ड्रेन करते हैं तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करेगा। थर्ड पोर्शन हमारा आता है टर्शरी पार्ट में, जो थर्ड स्टेप है हमारे ट्रीटमेंट का, टर्शरी ट्रीटमेंट। इस केस में जो ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे आपके पास बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों प्रोसेसेस आ जाते हैं, और इसे हम एक तरीके से बोल देते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तीनों स्टेप्स को एक साथ इकट्ठा कर देंगे। तो जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्लस आपका जो फिजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्लस फिजिकल एंड प्लस द केमिकल प्रोसेसेस, इन तीनों की हेल्प से हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में से वेस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। Recycling of wastewater. So these are some steps which are under the 3 phases where treatment of industrial effluents can be done. Now the next point is related with the other type of problems, or the excessive use, or we can say the degradation of resources. That point includes overdrawing of groundwater. In this case, reserves by the industry where there is a threat of groundwater resources, they also need to regulate legally. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scubbles, inertial separations or separators. These are used for decreasing the process of overdrawing of groundwater. So these are some steps which are taken to decrease the level of overdrawing of groundwater, which creates a serious threat to our industrial sector and to our economical sector. So smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. ये smoke को हम reduce कर सकते हैं with the help of oil and gas. In place of the things which we are using now, for example coal, which creates smoke at the high level. So decrease the use of coal and increase the use of oil and gas. And after that, some machineries and equipments can be used, and generators should be fitted with silencers so that decrease the noise pollution. If we are fitting the silencer in the machineries, so automatically the created noise is decreased,
So it is the possibility which creates low noise pollution. So almost all the machineries can be redesigned to increase energy efficiency and reduce the noise. So the noise which is absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. Now the challenge of sustainable development is a requirement where economic development is a very serious concern. Because if we are not at the point where sustainable development is going on, so automatically the situation creates a threat for our economical or environmental problems, or these will be increasing. अब जो नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड विद द सेकंड पॉइंट, दैट इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. एक्चुअली इस चैप्टर में जो मेन चैलेंज अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग मेन चैलेंज क्या है हमारा, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मीन्स हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वी वांट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम लोगों की डिमांड है कि मार्केट इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से डेवलप हो कि वो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, ना कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डेवलपमेंट हो गया और उसके बाद वो चीज़ें दोबारा से सेम उसी सिचुएशन में आ गई हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे एनटीपीसी का, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक बहुत ही मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया की. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, तो बहुत ध्यान से हमें समझना है इसको. एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है एंड दिस इज द मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इंडिया में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है पावर प्रोवाइड करने में, बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेशन है जो इस वर्क को कर रही है. इसके साथ ही इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड बाय आईएसओ. ये आईएसओ से सर्टिफाइड भी है फॉर ईएमएस. किस चीज के लिए सर्टिफाइड है, फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, कि एनवायरमेंट को मैनेज करके उस सिस्टम को यूज करते हुए ये जो एनटीपीसी है ये पावर को जनरेट करता है. सो इस केस में जो कॉर्पोरेशन है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच को लेके चल रहा है जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो, रिसोर्सेज भी प्रिजर्व हो जाएं, जैसे वाटर है, ऑयल है, गैस है, जितने भी फ्यूल्स हैं, इन सभी को हम पावर प्लांट्स में यूज तो करें बट इनका एक बेटर यूटिलाइजेशन हो और साथ ही एनवायरनमेंट के लॉसेस मिनिमम हो जाए, एनवायरनमेंट को हम नुकसान ना पहुंचाएं. सो ये कैसे पॉसिबल है, this has been possible through some points which are given in this topic relates with NTPC. यहाँ कुछ points हमें given है जो ये show करते हैं कि कैसे possible है कि पावर प्लांट होने के बाद, थर्मल पावर प्लांट होने के बाद नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे हम प्रिजर्व करके काम कर सकते हैं, अरे कैसे पॉसिबल है. तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मीन्स जितने भी रिसोर्सेस जो इक्विपमेंट्स हमें यहाँ पे हम जो रिसोर्स ले रहे हैं दैट इज इक्विपमेंट. जो भी रिसोर्स आप किसी वर्क को करने के लिए यूज करते हो तो यहाँ पे वो रिसोर्स क्या होगा आपका, दैट इज इक्विपमेंट. तो जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप इक्विपमेंट्स का करते हो वो कैसे पॉसिबल है, विद अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पे भी हम क्या करें, हम टाइमली अडॉप्ट कर लें लेटेस्ट टेक्निक्स को, ताकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो नॉइज पोल्यूशन है, जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उनको हम डिक्रीज कर सकें. अब या तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को ले आए या फिर स्टेप ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं आप उन्हें अपग्रेड कर दें. लेटेस्ट चीजें तो आपको उसके अंदर ऐड करनी ही है, साथ साथ आपको क्या करना है, अपग्रेड द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स. जो चीजें प्रेजेंटली आपके पास हैं अभी, जिनके यूज से आप बिजनेस कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स, ताकि हम एनवायरनमेंट के साथ खुद को
मिक्स कर सकें और इजीली उन चीज़ों से होने वाला जो इशू है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिक्रीज कर दें। सेकेंड स्टेप हम क्या ले सकते हैं, हम जितना भी ऐश, इन जो राख जिसे हम बोलते हैं, ऐश जो निकलती है थर्मल पावर प्लांट से, उस ऐश को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं और जो वेस्ट जनरेशन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टेप है जिसकी हेल्प से प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी वेस्ट जनरेशन है उसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन। वो कैसे होगा, बाय प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द ऐश, इट मीन्स बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। अगर हम ऐश को ज़्यादा यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे होने वाली डस्ट या जो एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसको हम ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देंगे। तो सेकंड स्टेप हम ये ले सकते हैं। इसके बाद जो एक और स्टेप एनटीपीसी यूज करता है, दैट इज प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स। जहां भी थर्मल पावर प्लांट सेटअप किए गए हैं उन सभी एरियाज में इकोलॉजिकल बैलेंस को नर्चर रखने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स को सेटअप किया गया है। एंड ऑल्सो दे वर एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल्स फॉर एफोरेस्टेशन। वो साथ साथ ये भी कोशिश करते हैं कि एक तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, होने वाला पोल्यूशन डिक्रीज होगा, दूसरा इससे ये बेनिफिट होगा कि ग्रीन बेल्ट्स इतनी ज्यादा सेटअप होती जाएंगी उतना ही ज्यादा एफोरेस्टेशन भी क्रिएट होगा। डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, जो डिग्रेडेशन करता जा रहा है लैंड्स का, सॉइल इरोजन जिससे बढ़ती जा रही है, अपर लेयर हमारी रिमूव हो जाती है। तो ग्रीन बेल्ट्स के साथ साथ पोल्यूशन तो डिक्रीज हो गई, साथ साथ एफोरेस्टेशन भी बेटर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसके बाद हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए ऐश पोंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो टू रिड्यूस, और वी कैन से रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जितना भी हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है उसे प्रॉपरली उस पोल्यूशन के लेवल को डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज डन थ्रू ऐश पोंड मैनेजमेंट। हम ऐश पोन्ड्स को बना सकते हैं और उन्हें प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोबारा क्रिएट ना हो। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ऐश वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। ऐश वाटर रिसाइकलिंग हो सकती है, सिस्टम हम क्रिएट कर दें जिससे ऐश वाटर को इजीली रिसाइकिल किया जा सके। एंड विद दैट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। सो ये वो स्टेप्स हैं जो सभी एनटीपीसी फॉलो कर रहे हैं, मींस ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। तो इससे बहुत इजीली क्लियर है कि ये प्रिजर्व कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सेव करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपरली उनको सेटअप करते हैं, जहां उनकी रिक्वायरमेंट है वहीं पे उनका यूज किया जाता है। एक और लास्ट पॉइंट इसमें ऐड होगा, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी इस केस में होती है कि आपने जो वर्क किया एक्चुअल में वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो आप प्लान कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। हमारा जो बैलेंस है इकोनॉमी का उसको मॉनिटरिंग पे रखा जाता है। एंड ऑल्सो रिव्यूज एन ऑनलाइन डेटाबेस, उसे हम रिव्यू करते हैं एंड उसके डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं, मींस एग्जैक्टली जितने पावर प्लांट्स डिफरेंट एरियाज में हैं, कितना किस तरह से कौन से स्टेप्स को उन्होंने लिया, डेटाबेस उनके फाइनलाइज किए जाते हैं, उनको सेटअप किया जाता है। और जितने भी पावर स्टेशंस हैं ये स्टेप हर जगह पे हो रहा है। इससे क्या पता लगता है, इससे एक्चुअल में आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको आप मैच कर सकते हो आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कि जो आपने प्लान किया था उस वे में आप वर्क कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है ये जितने भी ऐसे थर्मल पावर स्टेशंस हैं उन सभी में इनका यूज किया जाता है। So these are some steps which are taken under National Thermal Power Corporations
जिसकी हेल्प से नेचुरल इन्वायरमेंट भी प्रिजर्व हो रहा है, मैक्सिमम और बेटर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है रिसोर्सेज का, और इसी की हेल्प से हम बहुत सारे लेवल पे पोल्यूशन को डिक्रीज भी कर पा रहे हैं, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें हमने इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया, प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया, देन हमने डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस देखे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को हमने देखा, और आज हमने जो डिस्कस किया वो रिलेट कर रहा था कंट्रोल से और एनटीपीसी के बारे में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन सबको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। आफ्टर दिस we will start our next or our last chapter of geography, that is lifelines of an economy. हम उसको इसके बाद स्टार्ट करेंगे। Now let us take a look on some questions which are related to this chapter, जो आप सभी को लर्न करने हैं। And the questions are, first is, what is manufacturing? I am discussing the questions which are given in your NCERT book. So these are important questions which are asked in your exam. So the first question, you have to write down the answer, that what is the meaning of manufacturing. So you have to write that the production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. It means जब हम raw materials को convert कर देते हैं different processes की help से useful items में, so that is known as the process of manufacturing. So first question आपको यही learn करना है. Second one is, name any three physical factors for the location of industries. कौन कौन से three physical factors हैं जिसके बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप करना चाहिए और कहाँ सेटअप नहीं करना चाहिए. So these physical factors are land, labor, where cheap labor is available, also transportation is there, communication system is proper. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं दैट वेयर यू हैव टू लोकेट योर इंडस्ट्रीज और वेयर यू डोंट हैव टू लोकेट योर इंडस्ट्रीज. सो ये डिपेंड करता है डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स पे और ह्यूमन फैक्टर्स पे कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद बेसिक इंडस्ट्रीज. बेसिक इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? दोज इंडस्ट्रीज which provide raw materials to other industries. It means ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाती हैं. जनरली आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से. बट प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है, हर एक इंडस्ट्री डायरेक्टली उसका यूज नहीं करती प्रोडक्शन के लिए. सो सबसे पहले क्या होगा, उस प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए रॉ मटेरियल को कोई एक बेसिक इंडस्ट्री यूज करती है और उसी रॉ मटेरियल को वो यूजफुल बनाती है दूसरे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए. सो इसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक इंडस्ट्री. जहां पे ये रॉ मटेरियल्स रेडी किए जाते हैं ताकि फर्दर इनका यूज करके प्रोडक्शन किया जा सके और डिफरेंट इंडस्ट्रीज इनको यूज कर सके. दोज इंडस्ट्रीज आर नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेट करता है दैट नेम द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सो ये क्वेश्चन जो है ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है. मैंने आपको कुछ टॉपिक्स डिडक्ट करवाए थे. सो ये जो क्वेश्चन है ये उन्हीं टॉपिक्स में से, सो आपको ये नहीं करना है बिकॉज केमिकल वाला टॉपिक जो है हमारे एग्जाम में नहीं रहेगा. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट. इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को किस तरीके से पोल्यूट करती है? हाउ डू इंडस्ट्रीज pollute environment. So इस केस में आप जो हमने आज स्टेप्स डिस्कस किए थे उन सभी को मेंशन करेंगे. कंट्रोल से पहले का जितना भी टॉपिक था कि जो भी डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशंस हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इफ्लुएंट्स हैं, जो केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, उनको ड्रेन कर देना
तो इंडस्ट्रीज सबसे पहला पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करती हैं, सॉइल और वाटर दोनों पोल्यूशंस, जिस केस में वो अपने सभी केमिकल इफ्लुएंट्स को ड्रेन करती हैं डिफरेंट रिवर्स में या पोन्ड्स में। उसी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है और सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो इंडस्ट्रीज जो है डिफरेंट वेज में बहुत सारे इफ्लुएंट्स को इस तरीके से ड्रेन करके पोल्यूशन क्रिएट करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। सो इसके लिए आज हमने डिफरेंट स्टेप्स भी किए थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेप्स इंडस्ट्रीज ले सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज जो है वो रिसाइकलिंग कर सकती हैं वाटर की, उसी को रीयूज कर सकती हैं। इसके साथ साथ वो जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम स्टार्ट कर सकती हैं। साथ ही जो वाटर, हॉट वाटर है, इफ्लुएंट्स हैं, उनको ट्रीट कर सकती है प्रॉपरली, ताकि इस तरह के इश्यूज क्रिएट ना हो। सो ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम वाटर पोल्यूशन को या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को स्लो कर सकते हैं।